Let your presence, Lord, hallelujah, fill each and every heart this morning, Lord. You speak to us, Lord. We submit ourselves. Let your words move powerfully and touch the souls. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated. कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thanks, Reverend Roy Anthony, for supporting me here. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर रॉय एंथनी का उनके सहयोग के लिए। Who was the former General Youth President. और ये मुझसे भूतपूर्व जनरल यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं। He is an inspiration to me. और ये मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। Working in a government sector, leading a church and also running a school. और ये जो है खुद एक गवर्नमेंट जॉब में है, साथ ही कलीसिया चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, ये सारे काम भी ये करते हैं। So challenging, and I know how difficult it is. Running a family itself is difficult for many, but managing all these things, really God is giving grace. ओके, थैंक यू। आप देखेंगे कि आज एक परिवार चलाना ही इतना मुश्किल है, तो इतनी सारी चीजों को कैसे चलाना है मैं जानता हूँ, ये एक बहुत मुश्किल बात है। Hallelujah. Praise the Lord. So let us all turn to the Word of God. आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। So today we are going to see about the relationship with our Lord. आज हम प्रभु के साथ संबंध में आज यहाँ पर बात करेंगे। Brother Livingston has beautifully explained the relationship. और ब्रदर लिविंगस्टन ने बहुत ही खूबसूरती से इस संबंध के बारे में हमें बताया है। What all we need to do to continue the relationship. और हमें करना क्या है कि उस संबंध को बरकरार रखना है। What we need to do to maintain the relationship. और हमें उसको बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। So now I am going to speak about. और मैं इसी संबंध में आज आपके सामने बात रखूंगा। The value of this relationship. इस संबंध की एक वैल्यू, उपयोगिता क्या है। So how God see this relationship. और प्रभु इसको किस नजर से देखता है। So we are going to see that in this afternoon. आज हमें इसी बारे में यहाँ पर वचन देखना। I want you all to focus your attention towards this message. और मैं चाहूंगा आप सबकी एकाग्रता आज के वचन पर बनी रहे। So Bible speaks about our Lord. और प्रभु का वचन हमें प्रभु के बारे में बताता है। From the Bible we understand that. और बाइबल से हम इस बात को समझते भी हैं। God is omniscient. और प्रभु जो है सब जगह मौजूद होने वाला। Nothing is unknown to him. और ऐसी कोई बात नहीं जो वो नहीं जानता। He knows everything. वो हर बात को जानता है। Job 9:4 says. और यहाँ पे आयुब और उसके 4:9 बोलता है। He is wise in heart. और वो जो अपने हृदय से बहुत ही वफादार है। And mighty in strength. और वो जो है अपने ताकत में भरपूर है। Who hath hardened himself against him. और कौन उसके खिलाफ खड़ा हो And सकता है। hath prospered. और उसको प्रॉस्पर करता है। So he is wise in his heart. और वो अपने दिल से बहुत ही चतुर है। He has made everything beautiful in his time. और उसने अपने समय में सब कुछ को खूबसूरती से बनाया He है। is so intelligent that he made each and everything in this universe so beautifully. और उसने इस संसार की हर एक वस्तु को बहुत ही खूबसूरती से सृजा है। Everything we see are interdependent. और हर चीज को हम देखते हैं परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। It's a cycle. It's a routine. ओके, ये जो है एक साइकिल की तरह रूटीनली एक दूसरे पर निर्भर है। You see the sun, it is coming every day morning and evening it's hiding. और हम देखते हैं सूरज को प्रतिदिन वो उगता और शाम को डूबता भी है। You see the water, it's a cycle again. और हम पानी को भी देखते हैं कि वो एक के बाद एक अपनी साइकिल को पूरा करता है। So everything God made very very wisely and so much intelligence is involved. और हम देखते हैं कि प्रभु ने हर चीज की सृष्टि बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ किया। Bible says in Psalms 136:5, He made heavens by His wisdom. और उसने भजन संहिता में हम देखते हैं 136 में कि वो उसने बहुत ही बुद्धि से इन सारी चीजों को सृजा। Job 9:10 says He does things which we can't even think about. और हम वचन में देखते हैं कि जिस कार्य को उसने किया है हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। Which have not even come in our mind.
the ways, God's ways of such things. और हम अपनी सोच में भी इन बातों को नहीं ला सकते कि प्रभु ने इन कार्यों को कैसे किया। Isaiah 46:10 says, यशायाह 46 उसके 10 में हम देखते हैं, He declared the things happening in the end at the beginning itself. और वो जो बातें जो अंत में होनी थी उसको शुरुआत में ही बता दिया गया। Throughout the Bible you can see God is speaking the prophetic words which are going to happen in the future. और हम देखते हैं प्रभु के वचन में बहुत सी ऐसी बातें जो भविष्य में होना चाहिए उसके बारे में प्रभु ने पूर्व में ही बता दिया है। He has designed our future. उसने हमारे भविष्य को सृजा है। He has all things according to His purpose He is doing. और उसने हर चीज को एक प्रयोजन के माध्यम से यहाँ पे सृजित किया है। John 2:22, 23, 24 says, यूहन्ना 2 उसके 24, 23 और 24 में देखते हैं, many people came and started walking close to Jesus. और बहुत से लोग प्रभु में आए और उसके साथ साथ चलते थे। But God knows each and every heart. लेकिन प्रभु हर एक हृदयों को जानता है। So He couldn't come close to them because of their heart. और वो उनके हृदयों के कारण कईयों की वो नजदीकी में नहीं है। Nobody want to tell him about any person to him. और वो किसी एक दूसरे व्यक्ति के बारे में उनको नहीं बता सकता। I can tell about pastor to you what I know about him. मैं पास्टर के बारे में आपको बता सकता हूँ जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ। Because you don't know what you are listening from me, you will have an opinion about pastor. जो बातें आप सुनेंगे उसके बाद उसके अनुरूप ही आप पास्टर के बारे में अपनी कल्पनाएं कर सकते हैं। But God knows each and every one through and through of them. और लेकिन प्रभु हर एक के बारे में वर्ड टू वर्ड हर एक बात को जानता है। So nobody needs to tell to him about them. इसलिए आपको प्रभु के किसी के बारे में प्रभु को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। Next, Bible says the God is omnipotent. और दूसरा प्रभु का वचन कहता है वो सबको जानता और हर जगह में उपस्थित है। He has power to do anything. और उसके पास सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। If he says, it will be happening. वो बोलता है और वो घटित हो जाती है। He says in Jeremiah 32:27, और यिर्मयाह 32 और 37 में बोलता है, Behold, I am the Lord, और वो बोलता है कि मैं खुदा हूँ, the God of all flesh. और हर एक लोगों के बीच में Is there anything too hard for me? क्या कोई भी बात यहाँ पर मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है? There is nothing impossible for him. उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। In Matthew 28th chapter verse 18 he says, मत्ती 28 और 18 में वो बोलता है, From the heaven and earth all the powers are with him. स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारे अधिकार मेरे पास हैं। He is omniscient. वो जो है हर जगह मौजूद है। He is omnipotent. और वो हर जगह प्रेजेंट है। And third, he is omnipresent. और वो हर जगह मौजूद रहने वाला है। His eyes are roaming throughout the world everywhere. और उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती है। Nothing is hidden to him. उससे सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। If you, the psalmist says, और यहाँ पे भजन संहिता बताता है, if I go to heaven, you are there. यदि मैं स्वर्ग में भी जाऊं, If I go to the Hades, you are even there. यदि मैं बिल्कुल पाताल में जाऊं तो तू वहां पर भी है। Where I can go hiding from your presence. मैं आपकी नजर से कहां बच के जा सकता हूं? Many times कई बार we hide ourselves from the pastor. और कई बार हम अपने पास्टर से बचते फिरते हैं। We hide ourselves from the parents. कई बार हम अपने माता पिता से बचते हैं। But Bible says we cannot hide anything from the Lord. लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु की नजर से बचना असंभव है। His eyes are watching everything. उसकी आंखें निरंतर आप पर लगी रहती हैं। Fourth, the Bible says our Lord is holy. और साथ ही हमारा बाइबल बताता है कि प्रभु पवित्र भी है। He is holy. वो पवित्र है। Holy and very very holy, and it's in the superior position of holiness. और वो पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, पवित्रता की पराकाष्ठा पर है। Bible says no one can see or reach his holiness. वो कहता है कि कोई भी उसके पवित्रता तक पहुंच नहीं सकता। He is very holy. वो बहुत पवित्र है। Last week I went along with my youth boys. और पिछले हफ्ते मैं अपने यूथ के बॉयज के साथ कहीं जा रहा था। We all went an outing. और हम सब लोग एक आउटिंग के लिए निकले थे। Chennai Marina Beach is famous. और मरीना बीच जो चेन्नई का है वो बहुत फेमस है। So we all around 25 to 30 youth members, me and my wife, we all went to Marina Beach. और मैं अपनी पत्नी के साथ लगभग 25-30 लोगों के साथ मरीना बीच पहुंचा। We spent good time with them there. और वहां पे हमने एक अच्छा समय व्यतीत किया। And when the night came, और जब रात हुई, one of the youth said,
Anna, there is a good shop here. They do fried rice and chicken gravy. Things are very good. और हम में से एक जवान ने मुझसे कहा कि यहाँ एक बहुत अच्छी दुकान है जहाँ पे चिकन और फ्राइड राइस से अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं They give combo offers. और वो हमें कॉम्बो ऑफर्स भी देते And हैं the rate is also very cheap. और उनकी कीमत भी बहुत कम है Whenever I come, I used to have there. और जब भी आता हूँ वहाँ जरूर जाता हूँ Today you come and taste it. आज आप मेरे साथ चल के टेस्ट So करिए we all went there. तो हम सब वहाँ पहुँचे Unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से something I saw. मैंने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया Behind that shop, और उस दुकान के पीछे he has one bucket full of water. और एक बाल्टी पानी से भरा हुआ था I think from the morning he is using that same water to wash all the plates. और मुझे लग रहा है कि सुबह से लेकर जितनी प्लेटें धुली है उसी पानी से धुला है And the water is yellow in color. और वो पानी पीला दिखने लगा है When I saw that, जब मैंने उसको देखा I said, no, we don't need to eat here. मैंने कहा नहीं हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे We'll find other place. हम कोई दूसरी जगह देखते But हैं all the boys said, no, no, this is very good. You taste this. लेकिन जितने लड़के थे बोले नहीं यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है I said, it's not clean. लेकिन मैंने बोला यहाँ सफाई नहीं है They said, Anna, don't see those things, Anna. This taste is very good. उन्होंने बोला भाई आप केवल इसकी सफाई मत देखो उसका टेस्ट पे आप ध्यान दीजिए But I couldn't get convinced to eat that food. लेकिन मेरा मन उस भोजन को खाने के लिए तैयार नहीं As a हुआ human being, या एक इंसान होने के नाते when we go to one standard, जब हम एक स्टैंडर्ड तक जब हम जाते हैं one standard of cleanliness we reach, और वहां पर जब हम उस सफाई की उस दौड़ को जब हम देखते हैं we see the below standard as ugly. और हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड के नीचे का है उसे हम गंदा मानते हैं Once we may be in that lower standard, हो सकता है एक समय हम उस लोअर स्टैंडर्ड में रहे हों when we go to higher standard, लेकिन जैसे ही हम उच्च वर्ग में आते हैं we'll see this as ugly. तो हमें वो नीचे का स्थान गंदा दिखता है We had one guest in our office. हमारे ऑफिस में एक अतिथि आए He's a director in one of the government research organization. और वो गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक डायरेक्टर में पोस्ट में है We brought him to lunch in our college VIP lounge. ओके हमने उनको अपने कॉलेज में वीआईपी लॉन्च में लंच के लिए आमंत्रित किया When he came and just he took the plate, और जैसे ही वो आए और उन्होंने प्लेट उठाई he saw one small circle that is a water droplet dried. ओके उस प्लेट में एक छोटा सा पानी का सूखा हुआ एक निशान था He just kept it and said, I will have lunch outside. और उस प्लेट के उठाते से कहा नहीं मैं बाहर खाना खा We लूंगा tried to convince him, but he didn't allow it. हमने बहुत प्रयास किया कि वो हमारे साथ खाना खाएं लेकिन उन्होंने मना कर It दिया was a great shame to us. और यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात रही Why I'm telling these examples is, मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूँ God is so holy क्योंकि हमारा प्रभु बहुत पवित्र है that it is so difficult for him to come close to us. तो इस उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो हमारे नजदीकी में आए He said to Israelites, वो इजराइल से बोलता है I wish to stay with you, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ but create a holy place for me. लेकिन मेरे लिए पवित्र स्थान निर्माण करो If I want to stay with you, यदि मैं आपके साथ रहूंगा I can speak with you, I can enjoy your worship, मैं आपके साथ रहूंगा मैं आपके वर्शिप को एंजॉय करूंगा but I should be in a holy place. लेकिन मुझे पवित्र स्थल चाहिए If I want to be inside your area, या आप चाहते हो कि मैं आपके स्थानों पर आऊं your entire camp should be very clean. तो आपका पूरा परिसर स्वच्छ होना चाहिए Any unclean things if I found, I will leave you away. यदि आपके परिसर में कोई भी गंदी चीज होगी तो मैं निकल जाऊंगा वहां से Being a super powerful God, एक बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर He is है omniscient, और वो हर बात को जानता He है is omnipotent, वो हर जगह प्रेजेंट होता He है is omnipresent. वो हर जगह मौजूद होता है So he having all these qualities within him, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज उसके जीवन में पाई जाती है none of these things stops him to communicate with man. और ये कुछ बातें वो मनुष्य से संपर्क करने के लिए परेशानी बन सकती है Except the character of holiness within him. ये सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एक पवित्रता का एक चरित्र हमारा होना चाहिए When he come close to us, जब वो हमारे नजदीकी में आता है his holiness is resisting him to come close to us. और वहां पर जो पवित्रता है वो कई बार हमारे पास आने से हमें रोकती है Isaiah 59:2 says, यशायाह 59 उसका 2 बोलता है our sin is like a wall blocking
the Lord to reach you. Praise the Lord. हमारे पाप एक दीवार की तरह प्रभु में पहुंचने से हमें रोकते But हैं। God has one more character. लेकिन वहीं परमेश्वर का एक और चरित्र 1 देखेंगे। John 4:8 says, वहाँ पे यूहन्ना 4 और 8 में लिखा है, God is love. परमेश्वर प्रेम है, He is full of love. वो पूरा प्यार से भरा हुआ है। This love inside him उसके अंदर का वो प्रेम pushing him to come close to each and every one of और us. उस चीज को धकेलता है कि वो हम में से हर एक के नजदीकी में पाए जाए। Hebrews 2:16 says, हिब्रू 2 और 16 में बोलता है, He not even loved the angels so much. वो ना केवल उन फरिश्तों को ज्यादा प्यार करता The है, angels are always around him. क्योंकि वो फरिश्ते हमेशा उसके नजदीकी में रहते They हैं। worship him. वो पूरे टाइम वर्शिप करते They हैं, do all the service to him. वो पूरी उन्हें सेवाएं देते हैं। But the Lord felt more love on human beings like you and me than the angels. Praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर लेकिन उन फरिश्तों से भी ज्यादा वो आपसे और हमसे प्रेम रखना चाहता है। How many of you are accepting this? Can you raise your hands and say hallelujah? कितने लोग इस बात से सहमत और अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे? Why the Lord love us more than the angels? परमेश्वर हमसे उन फरिश्तों से ज्यादा प्रेम क्यों करता है? Bible says in Genesis 1:27, और उत्पत्ति 1 और 27 में बोलता है, He created us on His own image. क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। He loved when He created us. वो बहुत प्रेम से उसने हमारी सृष्टि की है। His heart filled with joy when He created us. उसका हृदय प्यार से भर गया जब उसने हमारी रचना करी। Each and every organ in us He created seeing Himself. और अपने सारे अंगों को अपने अनुरूप उसने हमारे और आपके लिए बनाया। So once when He completely created the man, और जब उसने एक इंसान की पूरा एक प्रकृति बनाई His love started overflowing. और उसका प्रेम उमड़ने लगा He blessed the man. और उसने उस व्यक्ति को And आशीषित किया and He said, You have to rule over the entire earth. और उसने कहा कि आप जगत की सारी ओर फैल जाओगे। He said, be fruitful, उसने बोला कि आप फलवंत बने, multiply, आप बढ़ते जाएं replenish the earth, और आप पूरे संसार में फैल जाएं and subdue it. और उस पर अपना अधिकार रखें। So all this power and blessings God gave to man. और इतने सारे सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया Can you है। say on hallelujah? क्या आप हालेलुया बोल सकेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Each one of us, God has given this kind of power and blessings. हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में प्रभु ने इतनी सामर्थ्य भरा He है। wants us to multiply. वो चाहता है कि हम बढ़ते जाएं He wants us to subdue other creatures. और वो बाकी चीजों के ऊपर हम अपने अधिकार को रखें। He wants us to rule everything. और वो चाहता है कि इंसान सब चीजों पर अधिकार रखें। So all these things He gave out of love. और ये सारी चीजें जो उसने हमें दी हैं वो प्यार के माध्यम से दी है। As long as man was holy and obedient to the Lord, और जब तक एक मनुष्य इस वफादारी में बना रहा है, ओबीडिएंट में, डिसिप्लिन में बना there रहेगा, was a complete relationship between the God and the man. तभी एक व्यक्ति का परमेश्वर से संबंध स्थापित हो पाएगा। This relationship was furious for the Satan, and some way he want to break it. Praise the Lord। लेकिन आपके परमेश्वर के संबंध से शैतान नाराज और गुस्सा होता है। He is finding ways how I can break this relationship. शैतान प्रयास करता है कि मैं संबंध को कैसे तोड़ दूं। He found that Eve is little bit weaker. और वो चाहता है कि कहीं तो आप कमजोर बने। So he wisely approached Eve. इसलिए वो सारी बातों को, बुरी बातों को वो बहुत ही चतुराई से कंडक्ट करता है। He said, Did God stop you from enjoying this fruit? और वो बोलता है कि क्या परमेश्वर इन आशीष और आनंद में बने रहने से आपको रोकता है? She said, No, God has allowed us to enjoy everything except this fruit. लेकिन वहां पे बोलता है, ईव बोलती है कि इस एक फल को छोड़कर बाकी सारी चीजों को आप आनंद ले सकते हो। Today I say to these young men and women, आज यहाँ बैठे जवान बहनों और भाइयों से मैं बोलता हूँ, there are so many blessings already God has kept open to you all. प्रभु ने पहले ही आपको बहुत सारी आशीषों से भर दिया है। You have to enjoy all the blessings what God has given you. प्रभु ने जो कुछ दिया उस हर एक चीज वस्तुओं का आप आनंद लीजिए। God has given good parents. प्रभु ने आपको अच्छे माता पिता दिए। God has given good education. प्रभु ने आपको अच्छा शिक्षा दी God has given good fellowship. और साथ ही प्रभु ने एक अच्छी कलीसिया दी। There is
God to answer your prayers. और प्रभु आपके हर प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। So there are so many blessings you have already received. आपने बहुत सी आशीषों को पहले से ही प्राप्त कर लिया है। But Satan comes and say, लेकिन शैतान आकर के बोलता है, did God stop you from using social media? क्या प्रभु आपको इन चीजों से करने से रोक सकता है? Did God stop you from having a girlfriend or boyfriend? क्या प्रभु आपको एक अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से रोक सकता है? So whatever things will lead you in a pathetic condition, he wisely comes and say that is the freedom for you. और साथ ही ये सारी बातें जो एक विपरीत परिस्थिति में हो सकता है, वो धीरे से आकर इन बातों को हमें बताता है। What happened here? वहां पे आखिर हुआ क्या? When Eve heard the words of Satan, जब वो उन शैतान की बातों को सुनता है, her mindset started changing. और उसका बुद्धि जो है वो बदलने लगता है। She was until that she was content, happy and joyful. और उस वक्त तक वो बहुत ही खुशी और आनंद में पाया जाता था। She had a very good relationship with the Lord and she is content with that. और साथ ही उस वक्त तक वो प्रभु की आनंद में पाए जाते थे। Her heart felt that everything is okay for me and God has done all these things great to me. और वो बोलते थे, प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। When she gave ears to the devil, लेकिन जब वो अपने कान शैतान को दे देती है, now her mind started thinking, लेकिन अब उसका मन सोचने लगता है, no, God has not given everything. नहीं, प्रभु ने मुझे सब कुछ नहीं दिया जो मुझे See, चाहिए। this fruit is so beautiful. ये फल कितना सुंदर है। Why God want to stop this to me? उस चीज से प्रभु मुझे क्यों रोकना चाहता है? What is stopping me to take that? उसको लेने से प्रभु मुझे क्यों रोकता I है? have freedom. मेरे पास आजादी I है, have free will. मैं फ्रीली काम कर सकती हूँ। I have to decide what I want to do. मैं निर्धारित करूंगी कि मुझे क्या करना है। She decided. और उसने निश्चित कर लिया, She ate that fruit. उसने उस फल को खा लिया, She gave the same to her husband. और उसमें थोड़ा सा अपने पति को भी दे दिया। What was the consequence? आप जानते हो कि क्या परिस्थितियां हुई? Sin entered into the world, और पाप जगत में उत्पन्न हो गया, affected the relationship with the Lord. और इसने परमेश्वर के संबंध को खेदित कर दिया। Where there is uncleanness, क्योंकि वहां पर अशुद्धि आ गई, God cannot continue there. वहां पर प्रभु उनसे परस्पर संबंध फिर जारी न रख सका। No more he can enjoy that relationship. और उस एक संबंध को वो खुशी में नहीं व्यतीत कर पाए। He started treating Adam and Eve as enemies. अब वो एडम और ईव को दुश्मन के रूप में देखने लगे। Bible says he drove them away from this garden. सो वचन कहता है कि उस अदन की वाटिका से प्रभु ने उन दोनों को बाहर कर दिया। No more place for them inside his place. और उनके उस अदन की वाटिका में उन दोनों के लिए जगह ना बची। If you sin, यदि आप पाप करें, you are against the Lord. आप परमेश्वर के खिलाफत में हैं। There is no more relationship between God and you. फिर आप में और परमेश्वर में संबंध नहीं रह सकता। He will drove you away from his presence. और अपनी उपस्थिति से वो आपको बाहर कर देता है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But लेकिन there is other side of the Lord. लेकिन परमेश्वर का एक दूसरा रूप भी है। One side holiness is pushing him. एक तरफ पवित्रता आपको धकेलती है, Other side love is pushing him. और दूसरी तरफ प्यार भी आपको धकेलता है। This love is telling ये प्यार बोलता है, you cannot live without his relationship. आप इस संबंध के बिना नहीं जीवित रह सकते। How beautifully you created this man. आपने कितनी खूबसूरती से इस इंसान को बनाया है। How joyful you spend time with him. आप परमेश्वर के साथ कितना अच्छा वक्त व्यतीत करते थे। Because he did one sin, he threw him away. क्योंकि वो आपको बाहर नहीं जाने देना चाहता। How you are going to spend your time without him? आप परमेश्वर के बगैर इन समयों को कैसे व्यतीत कर सकते हो? The other side is aching him. और दूसरी बात उसको जो खेदित करता है, It is longing for man. और ये परमेश्वर ये इंसान के लिए एक बड़ा समय है। Then what God decided? लेकिन प्रभु ने क्या निर्धारित किया? I want this relationship. मैं इस संबंध को चाहता हूँ, But you don't know what I want and what I don't want. लेकिन आप नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। So I am going to give you the commandments. इसलिए मैं आपको कुछ कल्पनाएं देना चाहता हूँ। This and all you have to do. ये सारी बात आपको करना है, This and all you should not do. और ये बातें
आपको नहीं करना है। If you did all these things, यदि आप ये सारे काम I करोगे, will bless you. मैं आपको आशीषित करूंगा, I will lift your life. मैं आपके जीवन को उद्धार करूंगा, I will make you a great nation that others all wonder about you. और उस संसार में आप बहुत ही महान होंगे और बाकी लोग भी इस बात को मानेंगे। But if you did the wrong thing, यदि आप उन बुरे कामों को करते I हो, will throw you away. मैं आपको बाहर कर दूंगा, I will allow all the curses, और मैं आपके ऊपर बहुत सी आपद विपत्तियां all the लाऊंगा, sickness and diseases. और बस ये बीमारी और परेशानी लाऊंगा, I will make you run for against the enemies. और वो जो है दुश्मनों के खिलाफत कर दूंगा, You will go down and down and down. और प्रतिदिन आप नीचे 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 होते जाएंगे। This is what God decided to the people of Israelites. ये ही एक बात प्रभु ने इजराइलियों के लिए निर्धारित करी थी। But Bible says लेकिन वचन बोलता the है, heart of man is full of corruption. और एक मनुष्य का हृदय बहुत सारे भ्रष्टाचार से भरे हैं। There is no good thing coming from the heart. उस दिल से आजकल अच्छी बातें नहीं आ रही हैं, All our thinking, all our process are towards corruption. और आज जितनी भी सोच विचारधाराएं दिल से निकल रही हैं वो सब भ्रष्टाचार से भरी हैं। In Genesis 6:5, God found that the human heart is fully corrupted. और यहाँ पे उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं, 9 में हम देखते हैं कि मनुष्य का हृदय इन भ्रष्टाचार और बुराइयों से भरा है। There is no good thing inside us. अब हमारे हृदय में अच्छी बातें ना रही, All our thinking are selfish. और हमारी सोच जो है आज हमारे आत्मा सेल्फिशनेस में भर गई All है। our thinkings are how I can be greater and how we want to push others down. और बहुत सारी बातें ये सोचती है कि मैं आगे बढ़ूं और दूसरों को नीचे धकेल दूं। I want to be happy. मैं खुश रहना चाहता I हूं, want to enjoy. मैं आनंदित रहना चाहता I हूं। want to have all these things. ये सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए। So all the thoughts are full of evil. और आज सारी सोच बुराइयों से भरी पड़ी है। So man cannot follow that commandments. इसलिए प्रभु उन कल्पनाओं को नहीं मानना चाहता। What happened to Israelites? और वहां पे इजराइलियों के साथ क्या हुआ? God became angry over them. और इस बात से वो उन पर नाराज हो गए, God sold them away. और प्रभु ने उनको दूर कर दिया, They were under the और वो उनके अंदर हो गए, उनके अंदर हो गए। Amalekites, then Moabites, so many enemy Philistines, so many people defeated and made them slaves. यस, वहां पर हम देखते हैं कि अम्बोनी ऐसे बहुत से माओली ऐसे बहुत से लोगों के उन्होंने उनके हार का सामना करना The पड़ा। more they were punished, उनको जितनी ज्यादा उनको सजा दी गई, the more they went away and away and away from the Lord. और उतना ही वो प्रभु से दूर दूर और दूर होते चले गए। Again he started thinking, वो फिर से सोचने लगे, how can I build this relationship? मैं इस संबंध को फिर भी कैसे जारी रख सकता How हूं? can I build the relationship with mankind? मैं इस मनुष्य जाति से संबंध को कैसे फिर से बना सकता हूँ? Is it right for me to treat him as an enemy? क्या मैं इनके साथ एक दुश्मन का व्यवहार रखूं? क्या ये I सही है? made him, मैंने इनको बनाया, I gave all the blessings to him. मैंने सारी आशीष इनको दी, How I can treat him as my enemy? मैं आपके साथ एक दुश्मन का व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? So God spoke to David. आज प्रभु बोलता है, He said to David, आज वो बोलता है like a father, एक पिता के समान, I am going to move with you. मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, You will be my son. आप मेरे बेटे हो। In 2 Samuel 7 verses 1 and 2, और दूसरा शमूएल उसका 7 उसके 2 और में हम देखते हैं, I एक और दो will में, be his father and he shall be my son. मैं उनके लिए पिता और वो मेरे लिए बेटे हैं। If he commit iniquity, यदि वो यदि आता है नजदीकी I will में, chasten him with the rod of men और मैं उनको एक प्रभु का जन बनाऊंगा, and with the stripes of the children of men. और वो जो है प्रभु के जन कहलाएंगे। But my mercy shall not depart away from him. लेकिन फिर भी मेरी दया मुझको उनसे दूर नहीं कर सकती। Now God changed the relationship. नौ परमेश्वर ने उस संबंध को बदल दिया है। Like a father-son relationship he made. एक पिता और पुत्र के संबंध जैसा उसने बना दिया है। Earlier it was like favored or enemy. और वहां पर हम देखेंगे कि वो हमारे खिलाफत में या हमारे फेवर में है। Now he changed as father-son relationship. अब उसने पिता और पुत्र के उस संबंध को बदल दिया है। Even whatever sin the son may do, it is not meant that he is not his son. यदि वो बच्चा जो सन है वो कुछ भी करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पुत्र नहीं है। Have you seen any father treating his son as enemy? क्या आपने कभी किसी पिता को अपने पुत्र से दुश्मना व्यवहार देखा है? Even though the father scold him, वो पिता उस बच्चे को डांटता है, even though the father stops providing the basic
basic needs to him, और कई बार पिता उसकी आवश्यकता की चीजें भी उनको नहीं देता after हो, 1 or 2 days, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद he will again come down. लेकिन वो फिर से नीचे आता है, Again he will hug him. फिर उसके बाद उस बच्चे को गले लगाता Again he है, will start loving him. फिर से प्यार शुरू कर देता That है। is the relationship between father and the son. यही एक पिता और पुत्र का संबंध है। No father will throw away his son. कोई भी पिता अपने पुत्र को दूर नहीं करता। So this father-son relationship, ये पिता और पुत्र का एक संबंध, but this relationship also didn't continue for a period. लेकिन अब ये संबंध एक लंबे दौर में नजर नहीं आ रहा है। Now the Lord decided, what can I do? अब प्रभु सोच रहा है कि मैं क्या करूं। I am in the heaven. मैं स्वर्ग में हूँ Man is in the earth. और मनुष्य धरती पे है, This earth is full of evil. और ये संसार बुराइयों से भरा पड़ा It है is totally unclean. और पूरी तरफ गंदगी फैली I है। am in a very holy place. लेकिन मैं एक पवित्र स्थल पर बैठा हूँ, Sitting there, and I cannot correct this person. मैं उस स्वर्ग में बैठकर मैं इस व्यक्ति का जीवन नहीं सुधार पा रहा हूँ। If I want to correct him, यदि मैं उसको सुधारना चाहूँ, I have to step down from my holy place. मुझे अपने इस पवित्र भवन को छोड़ के नीचे आना I होगा, have to come to this dirty place. मुझे इस गंदे स्थान पर उतरना होगा, I have to come into this sinful place. और इस बुराई से भरे हुए देश में मुझे आना होगा। So my heart won't allow me to come to this unclean place. लेकिन मेरा हृदय इस गंदगी में आने के लिए मुझे तैयार नहीं करता, Because I'm very holy. क्योंकि मैं बहुत पवित्र हूँ। There are so many standards I have to come down, so many steps I have to come down to reach this level. इस गंदगी में आने के लिए मुझे कई दौर से कई परिस्थितियों से होकर गुजरना होगा। This holy God, ये पवित्र परमेश्वर, because of the love He had on you and me, वो प्यार जो उसने मेरे और आपके लिए दर्शाया है, He has decided to come down to this earth. लेकिन फिर भी उसने जमीन पर आने के लिए अपने आप को तैयार किया। This unclean earth, इस गंदे इस पृथ्वी पर, sinful earth, ये पाप से भरी इस दुनिया में, greedy, यहाँ पे लालची लोग हैं, all the lust, और यहाँ पे कई तरह की अभिलाषाएं हैं, enmities, यहाँ पे दुश्मनियां हैं, all these sinful natured man, God has chose to come among him. ओ हालेलुया। इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। Hebrews 2:14 says, इब्री 2 और उसमें एक चीज में हम देखते how हैं, the children are having the flesh and the blood. और जितने बच्चे हैं वो हार्ड मांस शरीर से हैं, He made himself likewise them, और उसने अपने आप को भी मनुष्य के अनुसार निर्मित किया, so that he may have the relationship with them. ताकि वो हमारे साथ में एक संबंध जारी रख सके। John 3:16 says, यूहन्ना 3:15 कहता है, for God so loved the world, और परमेश्वर ने दुनिया से इस जगत से इतना प्रेम किया, He gave His only begotten Son, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, that nobody should perish, ताकि कोई भी जाए नहीं, but come into the relationship, लेकिन उस संबंध में बने should रहे, have everlasting life with Him. आप ताकि उसके साथ एक अनंत काल का जीवन जी This सके। is the steps He has took to come down, down, down and down to the earth. Praise the Lord। यही वो सीढ़ियां हैं जो उसने धीरे धीरे करके अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर इस संसार के लिए दे दिया We है। have heard people saying He is down to earth. और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि वो इस जमीन में नीचे उतर के आया, If somebody is humble, we will say He is down to earth. और हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो सज्जन है, हम कहते हैं कि वो डाउन टू अर्थ यानी जमीन से लगा हुआ व्यक्ति है। But this word really matches to Jesus Christ. लेकिन वही हम देखते हैं कि ये संसार जो परमेश्वर की दृष्टि से जब हम देखते हैं, Philippians 2:6 says, फिलिपियों 2:6 कहता है, who being in the form of the God, आप परमेश्वर के अनुरूप बनने के लिए made himself of no reputation, और आप अपने रेपुटेशन के and अनुसार took upon the form of a servant, और एक सेवक के समान सोच रखते and हुए, made himself in the likeness of man. और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य के जीवन के अनुरूप हम उसको He देखें, came down as a common man. और एक साधारण मनुष्य के नाते वो इस जमीन पर
उतार के He आया lived his life among the common people. और उसने अपना जीवन साधारण मनुष्यों का सा जिया। It is not an easy thing. ये उसके लिए इतना आसान नहीं था, It is not a simple thing. ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। The most richest and most holy the Lord, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सबसे पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, because of the immense love he had on me and you, वो प्यार जो उसने मुझसे और आपसे किया उसे दर्शाने के he लिए left all his position, his power and everything, उसने अपने सामर्थ, अपने पावर, अपनी सब चीजों को दांव पर लगाकर came down into this earth. वो इस जमीन पे उतर आया। Here people questioned him. लेकिन यहाँ पे लोग उनसे प्रश्न करते हैं, What authority you have? आपके पास क्या अधिकार है? How you can preach in the synagogue? आप सिनेगोग में परमेश्वर के वचन को कैसे बोल सकते हो? He controlled himself. लेकिन उन सारी जगह पर वो संतुलन बनाए The रखता है। Lord who has the complete control of the universe Oh. controlled himself. यस, उसे पूरे पृथ्वी पर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अपने आप को शांत रखता They है। slapped his face. उसने उन लोगों ने उनके चेहरे पर, उनके गाल पर थप्पड़ मारे, They spitted on his face. उन्होंने उनके चेहरे पर थूक दिया, They did all the ill treatment to him. जितना बुरा कर सकते थे वो सब उसके साथ किया। They want to prove that they are greater. और वो बताना चाहते थे कि हम महान हैं। They want to prove if we put Jesus on the cross, then people will see ourselves greater and it will be a great shame to do this man. Praise the Lord। वो लोग ऐसा सोचने लगे कि प्रभु यीशु को यदि क्रूस पे हम लटका देंगे तो लोग ये समझ लेंगे कि हम लोग सही हैं। At the Garden of Gethsemane, और वहाँ पे गethsemane में हम देखते हैं they came and catched him. वो आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। Jesus said, जी यीशु बोले, if I said one word, यदि मैं एक शब्द बोल दूं a large group of angels will come for me. और एक बड़ा समूह फरिश्तों का इस दुनिया में उतर आएगा। Even now I can throw you all and prove myself. मैं एक सेकंड में आप सबको फेंक कर अपने आप को सिद्ध भी कर सकता हूँ। But if I want to build a relationship with you, I have to accept this. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। लेकिन मनुष्य के साथ एक संबंध बनाने के लिए मैंने अपने आप को शांत रखा है। I want the relationship. मैं आपसे संबंध चाहता हूँ। I want you all to come close to मैं me. चाहता हूँ आप सब मेरे नजदीकी में आओ। I want to have a fellowship with मैं you. आपके साथ सहभागिता रखना चाहता हूँ। I want to be your God. मैं आपका परमेश्वर बना रहना चाहता You हूँ want to be my और children. आप मेरे बच्चे बने रहिए So to achieve this target, ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त कर I सके। am accepting all this shame. मैं उन सारी बुराई, सारी बेइज्जतियों को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ I am accepting all this shame. और मैं जितनी बेइज्जती है उन सबको मैं अपना चुका हूँ। Isaiah 53:3 says, यशायाह 53:3 कहता है। can you put that verse? Isaiah 53:3. यशायाह 53:3 को क्या आप दिखा सकते हैं? ओह हालेलुया, He प्रेज़ द is लॉर्ड। despised. वह तुच्छ जाना चाहता है, He is rejected. मनुष्यों का त्यागा हुआ, He is full of sorrow. वो दुखी पुरुष था He is full of grief. और वो रोग से जान पहचान थी, But we hide our face to him. लेकिन लोग उससे मुख फेर लेते हैं। All these words have very, very deep meaning. इन हर एक शब्द के पीछे बहुत गहराइयां हैं He was despised. और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तुच्छ जाना चाहता है, But the reason he came is he want to have you all. लेकिन वो इसलिए तुच्छ जानने के लिए तैयार हुआ कि वो आपको प्राप्त करना चाहता है He was rejected by men. और वो लोगों को द्वारा त्यागा गया। Actually, the God has to reject men जबकि होना ये चाहिए था कि प्रभु आपको त्याग because दे, of his sinful nature. क्योंकि उसके एक सिंफुल नेचर के कारण। But through love, he came to accept us. ओ लेकिन उसके प्यार के कारण वो आपको प्राप्त करने के लिए आया। But at the cross, men rejected him. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि इंसानों ने उसको रिजेक्ट किया। Hallelujah. Praise the Lord। Even now, whatever sin we do, we are rejecting the Lord. क्योंकि हम जब भी किसी पाप में जाते हैं हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। Whenever we sin, we are rejecting Lord. जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। Monday to Saturday, we live a life of our wish. मंडे से लेकर शनिवार तक हम अपने इच्छानुसार जीवन जीते हैं। Sunday, coming to the church and worshiping the Lord. लेकिन संडे चर्च में आते
प्रभु की आराधना शुरू कर देते We हैं think that God is accepting us. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको ग्रहण कर लिया। It is true, God is accepting you. ये सही है कि प्रभु आपको स्वीकार कर रहा है, But the reason is because He value your relationship. और उसके पीछे की वजह है कि परमेश्वर इस संबंध को पहचान देना चाहता है। The 6 days what we are doing is displeasing the Lord. ये 6 दिन आपने क्या कार्य किया, ये बातें प्रभु को दुखी करती It is है making Him worry. और इस बात से वो चिंता करता है। It is not acceptable to Him. वो बातें जो आप कर रहे हो वो ग्रहण योग्य नहीं है। Only one day you are coming and worshipping the Lord. लेकिन एक दिन आके प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हो, But because of love, He is accepting वो you. केवल प्रेम के कारण आपको एक्सेप्ट कर रहा है। Hallelujah. Lord. Hallelujah. Praise the Lord। He wants us to come into the relationship. वो आपके साथ उस संबंध को बरकरार रखना चाहता The है, relationship which He is expecting. और वो एक संबंध जो वो हमसे अपेक्षा रखता है। He wants us to be a bride with no dot in it. और हम देखते हैं कि वो एक दुल्हन की तरह वो हमें और आपको तैयार देखना चाहता है। Ephesians 5:25 says, इफिसियों 5 और उसका 25 बोलता we है, should not have any blame or spot within us. ये हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दाग या धब्बे नहीं होने He चाहिए। wants us completely holy. वो हमें पूरी तरह पवित्र देखना चाहता That है, is the reason He came to shed His blood. और यही एक बात है जिस कारण के लिए वो आएगा। Hallelujah. Praise the Lord। Let us all stand up. आइए हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. Praise the Lord। This afternoon I want to you all to realize